Good afternoon. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. A very curious question asked by one of the subscribers. Sir, you always say all vacancies are replacement of retirement vacancies. But most people they will retire at a higher position. How clerk will replace him? Very good question. And it is out of innocence or may not be knowing the banking procedure. So in this video, I will explain how banking functions. In banking, the highest rank is scale 7, that is general manager. So we will take an example and it will make you crystal clear how replacement happens by new recruitment. Say in a bank there are 10 general managers, they are retiring this year. So these 10 general manager vacancies will be filled by promotion from DGM. So DGMs will appear in an interview and 10 DGMs will become general manager. So in DGM rank now vacancies are 10 plus retirement in DGM. Say 15 DGMs are retiring and 10 got promoted. So there will be 25 vacancies of DGM. So AGMs in the bank will appear for promotion and 25 AGMs will become DGM and say 25 are retiring. So now number of vacancies in AGM will become 50. Now for this 50 vacancies, the chief manager will appear for promotion and 50 will get promotion and say 200 chief managers are retiring. So 250 will become vacancies in scale 4. Now for scale 4, that is chief manager, senior managers will appear for this post and say these 500 are now promoted and 2000 of senior managers retired. So 2500 vacancies arises in senior manager. Now managers will appear for this promotion. So 2500 will become senior manager and 3000 are say retiring. So 5500 will become the manager vacancies. Now scale 1 people will appear for this. 5500 will become scale 2 and 1000 may be retiring here. So 6500 vacancies will become. Now clerk will appear for promotion. 6500 will become officer and say 2000 clerks are retiring. So clerical vacancies will become 8500. Now out of this 8500 vacancies, bank may fill 6000 vacancies. 60% replacement. Now out of say 4000, 5000 scale 1 vacancies, some may be taken directly from the PO cadre, some may be taken from departmental promotion. So this is the process and that's why we say clerk and officer, they replace the retired people. I think this is clear. Now यही बात हम हिंदी में करेंगे. अब बहुत ही क्यूरियस क्वेश्चन पूछा कि सर लोग तो हायर पोजीशन में रिटायर होते हैं तो क्लर्क और अफसर से वो कैसे रिप्लेस होते हैं. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं. अब ये एग्जांपल जरूरी नहीं सेम हो जो इंग्लिश में लिया है क्योंकि मैं एक्स टेम्पो बोल रहा हूँ. आंकड़े इधर उधर हो सकते हैं, कंसेप्ट को हमें ध्यान देना है. मान लीजिए एक बैंक में 10 जनरल मैनेजर रिटायर हो रहे हैं तो ये कहाँ से पोस्ट फिल होंगी. जो डीजीएम है वो एजीएम के प्रमोशन के लिए बैठेंगे. 10 प्रमोट हो गए और 10 लोग रिटायर हो गए मान लो डीजीएम रैंक में. तो डीजीएम में कितनी वैकेंसीज हो गई? 20. अब एजीएम इन 20 वैकेंसीज के लिए बैठेंगे. 20 लोग प्रमोट हो गए एजीएम और मान लो 20 लोग रिटायर हो गए तो 40 वैकेंसी हो गई एजीएम की. अब इस 40 के लिए चीफ मैनेजर प्रमोशन के लिए बैठेंगे और इसमें से 40 तो एजीएम बन गए और 100 मान लीजिए चीफ मैनेजर रिटायर हो गए तो 140 वैकेंसीज हो गई. अब 140 वैकेंसीज के लिए सीनियर मैनेजर प्रमोशन के लिए बैठेंगे. 140 लोग प्रमोट हो गए, मान लो 200 लोग रिटायर हो गए सीनियर मैनेजर तो 340 वैकेंसीज हो गई. अब इन 340 वैकेंसीज के लिए स्केल 2 के लोग अपीयर होंगे. अब वो 340 तो प्रमोट हो गए, मान लो 500 रिटायर हो गए तो 840 वैकेंसीज हो गई. अब ये 840 वैकेंसीज के लिए स्केल 1 से स्केल 2 लोग बैठेंगे. तो स्केल 1 से 840 प्रमोट हो गए, मान लो 500 रिटायर हो गए तो 1340 वैकेंसी हो गई. इसमें से कुछ वैकेंसी पीओ से भरी जाएंगी, कुछ डिपार्टमेंटल प्रमोशन से. अब जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन वाले लोग हैं वो क्लर्क से पीओ के लिए ऑफिसर के लिए बैठेंगे. कुछ वैकेंसीज वहां फिल हो गई तो ये वैकेंसी क्रिएट हो गई क्लर्क की. कुछ रिटायर हो गए, उनको जोड़ देंगे, वो क्लरिकल वैकेंसी हो गई.
तो इस तरीके से जो ऊपर के लोग रिटायर होते हैं वो अल्टीमेटली वैकेंसी जाके बनती है क्लर्क और अफसर के अंदर, क्योंकि बैंक के अंदर जो हायर पोजीशन है वो इंटरनल प्रमोशन से ही मिलती है। डायरेक्टली बहुत कम लोग लिए जाते हैं हायर रैंक्स में, स्केल 2, 3, 4, 5, 6, 7 में बहुत कम लोग लिए जाते हैं, सारे लोग नीचे से ही ऊपर पहुंचते हैं। तो इसीलिए जो भी रिटायरमेंट होगी, चाहे स्केल 7 में हो, 6 में हो, 5 में हो, 4 में हो, 3 में हो, 2 में हो, 1 में हो, चाहे क्लर्क हो, वो अल्टीमेटली नई भर्ती से ही भरी जाएगी, चाहे वो क्लरिकल की शेप में ले, चाहे वो ऑफिसर की शेप में ले, या वो एसओ की शेप में ले, भरी ये वहीं से जाएंगी। और ये नॉर्मली 60 से 80% है रिटायरमेंट का। अगर किसी बैंक में 5000 लोग रिटायर हो रहे हैं एक साल में, तो 5000 नहीं लिए जाएंगे, 3000 लिए जाएंगे या 4000 लिए जाएंगे, या 3 या 4000 के बीच में लिए जाएंगे। तो साल के अंत में आप देखेंगे जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है वो कम हो जाएंगे प्रीवियस ईयर से, क्योंकि यही गवर्नमेंट की डायरेक्शन है कि ग्रेजुअली जो है स्टाफ रिड्यूस करते चले जाना, नई कोई पोजीशन क्रिएट नहीं करनी है। गॉड ब्लेस यू ऑल।